ghee. I say, I don't have ghee. I don't have butter in that. Just needs a little warming up. Heat it a little bit. Ghee is there, right there. You have butter in the hand. And you're crying for ghee. And you're lamenting, oh, there is no ghee, no ghee, no ghee. All it needs is a little heat. What do you say? This is so so precious, so precious. Is it easy to hold on to the pattern? Okay, don't do anything that is hard. You want to do only that is easy. So do it. If it is easier to hold on to it, hold on to it. Is it easy? Is it easy to be miserable? Huh? Because you are used to that pattern, so it feels a little easier, you know. Even misery looks very easy because you are used to misery. And being blissful becomes difficult because it is so easy. Because it is easy to be in the knowledge. From ages we have been doing the same thing, from ages. So many lifetimes. Now is the time to break that pattern and say no more, enough is enough. Here I am. Nothing will put me down. That self is sufficient. This self is sufficient. And my self will take care of it. Everything will come to our door knocking. Meanwhile, such thing happened here and there. You know, I landed it, I tell you, an instant. When I started this movement, from nothing, zero, I never even one day worried what will happen, how this will go. I had a responsibility of 175 kids to clothe them, feed them, educate them. And I never asked anyone one pie, one dime, one whatever. 175 kids. There was no place to put them. It was a school which was breaking down. I had to take over the school. And I had nothing. Zero. People thought I had gone crazy. It's difficult to bring up 2 kids. How here someone is going to feed, clothe, educate, take care of the teachers, run the whole school, and he has never gone anywhere to collect any donation anywhere. They have only given all the time. How is going to happen? Everything. I was so calm, never even anxious. That made people worry even more. Even doubt whether is this true? Is he going to run the school? Somebody comes to the door and says, I have this house. I'm going to USA on a job assignment for 3 years. Could you please take this key and run some satsang or whatever you want to do in the house? I said, very good. Come on, house has come, children, go there.
Another person comes, I saw a lot of children here. I'd like to bring 3 bags of rice and 1 bag of dal. I said, fine, go ahead. Everything coming to the doorstep, everything. I was in London. First time when I came out of India, the same month, January, very cold. I had a course, and then after the program, those people went for New Year, and then there was somebody who asked me, "Would you please come and stay in our place?" They had some sort of ashram, sort of something. So I went there, first day, second day. That man got frightened because he thought everybody coming is looking at only Guruji and going to him. Maybe all my customers will be gone. So this man in the night at 8 o'clock tells me and my assistant, my secretary was with me, I have to leave the place. We had nobody, we didn't know anyone there. We had only $6 in our pocket and a ticket. Only $6. What you can do in $6? Take a taxi? Airport? Not possible even that. My assistant was nervous, what we will do. At 8 o'clock in the night, he says, we have to work it, we have to go somewhere. This man who caught hold of my feet and begged me to come and stay with him. That too, it was snowing in London that time. It had snowed, everywhere was snow. And at 8 o'clock in the night, he says, you have to leave now. I said, fine. I said, fine, but my assistant had no faith. He was so worried. Where we will go, what he will do. In half an hour, somebody comes and says, you should please come and stay in our house. Please come to our house, visit our house. Stay there for a few days. I said, fine, I go. So 9 o'clock or so, something, said late night, we just packed our bags, I just went there. And today, if I go to London, people fight where I will stay, in which house I will stay. There are many homes now to stay. But there was a time where somebody asked me to go out of the house. Stayed for months together, just 2-3 days I must have stayed. 3 days maximum. These moments in life are so precious to see whether you got something in you or not. How solid you have become. You can be smiling and very happy and everything is smooth. When someone comes and spats on your face, then see, are you smiling? Someone spat you on your face, see what happens to you. That shows whether you are really in knowledge or just blah, 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 hovering up on the surface. I don't want you to be a cornflakes, just so flaky, flying. You need to be really solid, well-founded in life. So strong, so powerful. Nothing can disturb your smile. Nothing can take away your compassion. Nothing can take away your confidence. What do you say? Yeah. Are you awake or sleeping? They cannot stand devotees getting worried, tense, miserable, this and that. They cannot stand this. Wonder why they should even be concerned about anything.
Such powerful wisdom, such deep meditation, prayer, such love is here. You should know that the divine, the nature loves you more than you can ever imagine. God's love for you is so many times more than you can ever even imagine. Drop all your anxiety and just drop all your anxiety and just story in Bhagavad. It's Krishna was going to eat food, something like that. So his food was being served in the plate. He just sat just to start eating. Then he said, no, I have to rush. So he just stood up and left, was going. He went up to the door, and everybody there, those who were serving him, the gopis, they were trying to convince him, no, you eat food and then go. There is nothing urgent. Everything can wait. Have your food. And I said, no. One of the devotees is in trouble and he is calling me sincerely. No, I had to rush. So I was rushing. He went up to the door and he came back. Then he said, what happened? Yeah, he thought I am the only help. He was calling me for help. I was going, but now he thought something else will help him. So I can wait, I can eat food and go slowly. He started depending on other things. So now when he is depending on other things, he gives me free time. Let me eat and I'll go whenever I need to. That's a story. I don't remember. I think something like that. No? It was something like that. The intensity of our faith brings the result that quicker. Lesser the intensity of faith, that much longer time it will take. Help anyway will come. It only takes the time. When you are associated with an object or person, then love develops. And with the love, longing develops. This longing has to intensify. When the longing intensifies so much, then nothing other than that love can bring fulfillment. So that intensity of longing stirs up all tension, negativity, emotion, everything. Now to come out of this, you need enormous patience and prayer. Deep prayer. Restlessness, longing, dismay, desperation, all happens from navel to throat.
With real patience, you have to go to the second chakra actually and pray from there. Below the navel, go below the navel is the weakness. When you feel so weak, absolutely helpless, powerless, then you are in the second chakra. From there, say, okay, I give up everything. Then that intensity, that prayer becomes full. That is the way to overcome the anguish of longing. This is one way. Other that is praying from your bottom. Usually people say pray from your heart. That doesn't work there. When you are grateful, you pray from heart. But when you are so miserable, you cannot pray from the heart. You can only pray from the existence. And existence is in the second chakra, somewhere between first and second chakra. But that makes you very strong and powerful. Because the divine belongs to the weak. That's why it said Dina Bandhu means the friend of the weak. Dina means one who is weak, meek, totally powerless, helpless, and you are the, what do you call for Bandhu? Friend. You are the friend of, relative of, the redeemer of the meek. So that's why you go there and just sit, and from there you pray. There's no way I can get rid of this tension. I need help. Then you will see immediately changes happen. But this longing should not be suppressed by some substitutes. Longing for the divine should not be substituted by anything. Longing for other things they arise. See how intense they are. They long for partner, long for some position or money or whatever that is. A million times more should be the longing for the divine. So when the longing for the divine is so many parts more, then the misery should also be more. Intense anguish will also be more. But that won't be so bad. Because then the bliss will also be so many times more. The satisfaction of getting some objects or some little desires is very small. No? It doesn't really fulfill you. But the divine love, it completely fulfills you, makes you so total. Govinda Radhe, Govinda Radhe,
गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपी मनोहरा गोपी गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल राधे। उन्हीं ने आज तो गुरुदेव ने टेक्निकली भी बता दिया क्या करना चाहिए। तो वो हमारे ऊपर है अब तो, प्रार्थना कहाँ से करे ये तक बताया नहीं। चक्रों का खेल, और इसलिए जो लास्ट का जो भजन है ना, वो जो राग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो बहुत बार ना गाने वाले बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं, एकदम बैठ जाएंगे कुछ भी गा देंगे। गा सकते हैं कुछ भी, कोई पंगा नहीं है, पर हर राग का अपना अपना प्रभाव होता है। कुछ राग ऐसे हैं जो लॉन्गिंग को और बढ़ाते हैं, कुछ मन में वो मन को उठाते हैं, जो भी है। खैर, अब आप बताइए, हमने सुन लिया पूरा। स्वामी जी, तो चक्रा का थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कुछ? कुछ नहीं गुरु, सारांश यही है कि जब मन में बहुत कृतज्ञता हो तो आप हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। किसी के प्रति भी किसी ने कुछ किया हो, मन में बहुत अच्छा लग रहा है, उसने बहुत सहायता की, तो दिल से आशीर्वाद देते हैं। जब ऐसा नहीं है, जब परेशान है, मिजरी, बहुत चिंता है, उस समय हृदय से प्रार्थना होती नहीं, क्योंकि ऊर्जा हृदय तक जाती ही नहीं, ऊर्जा नीचे ही है। तो एकदम उस न्यूनतम, क्या बोलेंगे, लोवेस्ट पोजीशन को एक्सेप्ट करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। उस समय शौर्य नहीं दिखाना चाहिए, उस समय दीन होकर के प्रार्थना करना चाहिए। उस समय सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोच के नहीं, अब आपके ऊपर है, आप ही कर सकते हैं, वैसे प्रार्थना करना चाहिए। ये बात, जैसे गहरे सूखे कुएं के सूखे कुएं के गहराई में बैठे हैं, कोई उपाय नहीं, वैसा। कुछ गलत नहीं है, प्रार्थना सुनने वाला जानता है क्या करना है, ये कौन है। प्रार्थना सुनने वाले को पता रहता है कि क्या करना है, वो कैसे सिचुएशन में है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सुकून हमें मिलता है ज्यादा, वो उस प्रार्थना से ना अंदर से वो एक हम्म, पता नहीं, वो एक रिलीफ मिलता है वो। मिलता है, मिलता है।
मतलब अपने स्थिति को स्वीकार करना भी बहुत आवश्यक है कि हम अभी गर्त में हैं। हाँ, ऐसा है। अभी ऐसा महसूस होता है कि हम एकदम समाप्ति हो गए, बुद्धि नहीं काम करती, कुछ नहीं काम करता। स्वीकार करके प्रार्थना कर लेना, फिर वो बल मिल जाता है। स्वामी जी। बहुत पहले, जब मैं, एक मिनट भी दे दो, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मैंने बहुत स्कूल में पूजा पाठ, भगवान में विश्वास तो प्रत्यक्ष रूप से छोड़ ही दिया था, विरोध भी करता था। तो कॉलेज में पढ़ता था तो एक लड़का था, एक बार, ये सब बात होती है सब युवाओं में, तो मेरे से छोटा था, वो भगवान में विश्वास करता था। तो उसका कहना यह था कि एक बार वो नहाने गया नदी में और डूबने लगा, और अचानक किसी ने उसको पकड़ के खींच लिया। उसने मतलब उसकी ऐसी स्थिति थी, उसका कहना था कि अब वो मर जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। उसी समय किसी ने बचा लिया, और उसको फिर भगवान में बहुत विश्वास हो गया। तो मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि ये कैसा विश्वास है, मरने से बचा लिया तो भगवान है। पर अभी जो गुरुदेव ने बोला, अगर उसको देखें तो ये बात समझ में आती है। जब आप ऐसी जगह पहुंच गए, आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि बस गए, अब उस समय जो प्रार्थना निकलती है, फिर वो पहुंच जाती है सीधे। हाँ विजय जी। स्वामी जी, क्या कभी जैसे प्रार्थना भी कोई कर रहा है तो इच्छा ही है ना कि मेरे को इस जंजाल से मुक्ति मिले। इतना इतना इस सब चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। अभी बैठ के विश्लेषण कर, इसीलिए तो द्वंद्व हो जाता है ना। फिर प्रार्थना की तीव्रता भी समाप्त हो जाती है। क्यों? मन में द्वंद्व हो गया, तो इच्छा उठ गई, तो क्या गलत हो गया? गलत नहीं हुआ, मतलब करके कहानी खत्म, समाप्त। हमने बोल दिया, हमने प्रार्थना कर लिया, अब आप जानिए, हो गई बात खत्म। समस्या ये है कि प्रार्थना करके भी छोड़ते नहीं हैं। वही जो कहानी बताई, उसको लगता है कि वो मैनेज कर सकता है, तो मैं बाद में जाऊंगा तो चलेगा। आपने अपनी ठीक है। तरफ से अपना जो भी पार्ट है वो रख दिया ईश्वर के सामने, तो आपने अपनी बात कह दी। स्वामी जी, एक और यही बात पूछनी थी, लॉन्गिंग की जो हम बात कर रहे थे, लॉन्गिंग फॉर गॉड या ईश्वर गुरुदेव, तो जब कई बार ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही हमारे साथ है, मतलब ऐसा विश्वास, तो लॉन्गिंग होती है नहीं होती, तो पता नहीं, मैं नहीं जानता, समझ नहीं आई ये वाली बात। तो मत समझिए ना, क्यों समझना है? दिल की बात को बुद्धि से समझने का प्रयास क्यों करते हैं भाई? अच्छा, ठीक है। स्वामी जी, आपने कहा कि प्रार्थना करके छोड़ना आना चाहिए। तो ये जो अगर छोड़ भी देते हैं लेकिन फिर पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ लो। तो ये जो बार बार वो है, तो मतलब क्या हमें विश्वास नहीं है? मतलब मैं अपनी बात पता करूं, नहीं, पता नहीं, पकड़ लो क्या है? तो मतलब बार बार प्रार्थना करें? कर लो, जो जो ठीक लगता है वो कर लो, क्या है? गुरुदेव ने बोला इंटेंसिटी ऑफ फेथ को बढ़ाना पड़ेगा। आपको सब पक्का विश्वास है कि नहीं? जैसे कृष्णा डोर तक जाते आते खाना छोड़ते, लास्ट मोमेंट में देखते हैं उसने तो कुछ और अवलंबन कर लिया है, तो फिर
खाना खाना। उनको मालूम है भक्त परेशान है, विश्वास होना चाहिए कि वो सुनेगा मेरी। स्वामी जी, when गुरुदेव से वो कृष्णा का एग्जांपल दे रहे थे कि वो उठ के वापस आ गए, कि उसने सोचा कोई और हेल्प करेगा। ये जो कोई उसने सोचा कि कोई और हेल्प करेगा, ये कोई और में क्या क्या डायमेंशंस इंक्लूडेड हैं? देवता देवी ये भी उसमें आते हैं? मतलब कि अभी आप कृष्ण अपने हम पूरा गुरु जी पे फेथ करके बैठे हैं, पर बीच में हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। मीन्स ना व्हाट डज इट मीन? ना बुद्धि मत लगाइए ना, जब वैसी अब स्थिति क्या आए तो करूं? भगवान ने दिया ना। तो आप बताओ। बुद्धि से बुद्धि मतलब से इसका क्या मतलब है? प्रार्थना कोई टेक्निकल चीज थोड़ी है। अभी जिस प्रार्थना की बात कर रहे हो टेक्निकल नहीं है। जब वो स्थिति आएगी प्रार्थना कर लीजिएगा, जब जो होगा सो हो, बस। मतलब उस कोई समय और हेल्प करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? उस समय बुद्धि कितनी काम करेगी पता नहीं। नहीं काम करती तो अच्छा है, बुद्धि काम करेगी तो द्वंद्व बढ़ेगा, अटक जाएंगे। ना काम करे तो अच्छा है। इसलिए ज्यादा बुद्धि से नहीं। परेशान है, दुखी है, प्रार्थना कर लीजिए। पूरी हो गई तो जय राम जी की, नहीं पूरी हुई तो जय राम जी की। दूसरी बात, गुरुजी ने बोला कि जब लॉन्गिंग बढ़ेगी तो मतलब डिवाइन से कनेक्शन भी अच्छा, तो फिर मिजरी भी उतनी बढ़ेगी, मतलब उतनी ही उसमें लेवल पे। व्हाट डज दैट मीन? तो नहीं, एक तो लॉन्गिंग करने से नहीं होता है, वो अपने आप होता है। इसलिए जो चीज अपने आप होता है उसके बारे में डिस्कस करके क्या करना है। लॉन्गिंग दिल का मामला है, बुद्धि का मामला नहीं है। वो सोच के कर बैठेंगे हम लॉन्ग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप होता है। वो प्रकृति का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। होता है, नहीं होता, नहीं होता। जो चीज हमारे वश में है नहीं उसके बारे में बात करके क्या फायदा है। लॉन्गिंग कैसे बढ़ाएं? बढ़ाने से आर्टिफिशियली थोड़ी बढ़ता है, प्यार थोड़ी बढ़ता है आर्टिफिशियली। वो प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। अभी बहुत फील हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बस। पर वही, अगर कोई एक चीज पकड़ सकते हैं, गुरु को मन में रखने का मतलब क्या है, उसको पकड़ के रखिए। बात जब धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगी तो फिर सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। उसको समझा जा सकता है, लॉन्गिंग को समझा थोड़ी जा सकता है। सॉरी स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन था कि गुरुजी कहते हैं मिजरी भी फिर उसी लेवल की होती है, तो ऐसा है कि भक्त की लाइफ में मिजरी ज्यादा होती है? इज दैट व्हाट यू मीन टू से, कि चैलेंजेस ज्यादा होते हैं? लॉन्गिंग में परेशान, अगर लॉन्गिंग ज्यादा इंटेंस है तो लॉन्गिंग में दुख भी ज्यादा होगा। लॉन्गिंग अगर इंटेंस है तो दुख भी इंटेंस ही होगा। हम जी यहाँ पे फिर बुद्धि बीच में आ गई। एक आदमी का एक्सपेक्ट मतलब एक आदमी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ दुख माइट नॉट बी द सेम फॉर द अदर पर्सन, जबकि दोनों लोग सेम सिचुएशन में हो सकते हैं। इस काल्पनिक प्रश्न का कोई उत्तर थोड़ी है। काल्पनिक प्रश्न नहीं है ना, क्योंकि कई बार सिचुएशन दो लोग फंस गए एक ही जगह पे, तो दोनों हैं तो मुझे दुखी। नहीं- अभी भी ये कल्पना ही मात्र है। क्या बोल रहे हैं, फंस गए, ये हो गया? अरे वस्तु परिस्थिति बताइए ना। आप अपना दुख महसूस करते हैं, दूसरे का कैसे आप महसूस कर सकते हैं? दूसरे का कैसे जज कर सकते हैं कि उस सामने वाले को कितना दुख है, नहीं है? मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि हो तो सकता फिर तो केवल अपने बारे में बात कर सकते हैं ना।
अरे आप भी पिता हैं। आ, हम लोगों ने नहीं देखा है क्या? बच्चा अभी मिलके गया वहां से, चला गया कॉलेज या कहीं चला गया बाहर पढ़ने, माँ का शुरू हो जाता है। अरे अभी तो मिलके गया तुमसे, एक दिन भी नहीं हुआ है, काहे को आंख में इतने आंसू आ रहे, काहे को इतना दुख है? तो वो उसका मामला है ना। कैसे आप, हम कितना भी बोलेंगे, आप ही के घर में क्यों ना ये मामला हो, थोड़ी आप समझ सकते हैं इस बात को। आपका दुख है, सामने वाले का क्या है वो क्या जाने। जब तक हम पूरी तरह अंदर से खाली नहीं हो जाते, तब तक नहीं न पकड़ में आएगी बात। इसलिए दूसरों के दुख को जज करना या सुख को जज करना छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना। Swami ji, हम्म। Guruji said longing for the divine should not be substituted with anything. मतलब क्या हुआ? या, बहुत बार लॉन्गिंग होता है ना, तो हमको समझ में नहीं आता है। ये पता है कुछ हो रहा है, पर ये पता नहीं किसी चीज, तो हम चले जाते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं शॉपिंग करने। अच्छा, मे भी आज बैंगलोर शहर जाके डोसा वगैरह खाएंगे ना, तो बहुत चेंज अच्छा लगेगा। जाओ चेंज कर लो। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, डोसा खा के सुखी हो जाओ, पिज्जा खा के सुखी हो जाओ, समोसा खा के सुखी हो जाओ, जो कर, पराठा खा के सुखी हो जाओ, जो करना है करो। बहुत बार आदमी यही सब काम करता है। शॉपिंग करके सुखी हो जाओ। नहीं, और ये भी हमने देखा है, जाओ भी ना तो किसी चीज में रस नहीं आ रहा, रुचि नहीं हो रही, लेकिन ये धीरे 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 उसमें मन को लगाने लगते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वो दबा हुआ सा महसूस तो होता ही है। थोड़ी देर के लिए मन कहीं और चला जाता है तो रिलीफ मिलता है, पर मिलेगा तो है नहीं रिलीफ। बस सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं, एक दिन फिर फाइनली लॉन्गिंग चली जाती है। क्यों चली जाती है? वो आशीर्वाद की तरह आती है, आशीर्वाद हमेशा के लिए जरूरत नहीं रहती, फिर वो चला जाता है। तो लॉन्गिंग में क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए कि सत्संग मिल जाए, ज्ञान में जाने का, ज्ञान, इस तरह के किसी ज्ञान चर्चा में बैठने का मौका मिल जाए। अगर आश्रम में है तो फिर तो बात ही अलग है, सब चीज मिल जाएगा, सत्संग भी मिल जाएगा, साधना भी मिल जाएगी, गुरुदेव है तो गुरुदेव भी मिल जाएंगे, नहीं है तो कम से कम जहाँ है वहाँ सत्संग, ज्ञान चर्चा कुछ। Swami ji, sometimes you don't know what to pray. अच्छा तो है, ठीक तो। प्रेयर कोई शब्द नहीं होता, हमको ना बहुत सारी चीजों को लेके थोड़ा सा तो समझने की जरूरत है।
सरेंडर कोई एक्शन नहीं होता, प्रेयर कोई शब्द नहीं होता। बहुत बार हम शब्दों में प्रार्थना करते हैं, कर सकते हैं। बहुत बार ये भी नहीं समझ में आता, प्रार्थना अपने आप होती है। तो जो हो रहा है होने दे, क्या प्रे करना जब नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। हमको ये पता है, हम जानते हैं कि गुरुदेव शब्दों के परे जो भाव है हमारा उसको पकड़ते हैं। तो फिर डिवाइन कोई बेवकूफ थोड़ी है, डिवाइन को भी पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा भाव कैसा है, वो भाव पकड़ लेगा। शब्दों की आवश्यकता ही नहीं। नहीं ऐसा होता, गुरुदेव को देखते हैं और फिर आंख से आंसू निकलने लगता है। बहुत सबने ही अनुभव किया है। क्या कोई दुख नहीं था? कुछ भी नहीं था। हम भी आश्चर्य में काहे को आंसू निकल रहा है भाई। और पता नहीं दिल में क्या, कब से दिल में क्या चल रहा था, किसको पता है। तो वो जो भी उस समय प्रार्थना हो ना, वो हो के पहुंच भी जाता है। तो शब्दों के परे भावनाओं की गहराई। वाह 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 वाह, क्या बोला है। कल फ्रांस जाऊंगा परसों, तो कल है मेरा लास्ट। कल गुरुदेव का एक ऑडियो सुनेंगे हम लोग, एक और। वो कल या परसों का है, या शायद आज का है। मुझे नहीं, आज का तो, आज का नहीं होगा। वो भी बहुत अच्छा है, हिंदी में ही है, इसलिए और अच्छा ही है। उसमें भी बहुत सारा प्रश्न उत्तर है। ठीक। और क्या? स्वामी जी, एक चीज, कल का जो नॉलेज टॉक था उसके बाद बार बार दिमाग में आ रही है, पता नहीं सही है गलत। आप जब कल कह रहे थे कि इच्छा उठने से पहले वो चीज अवेलेबल है, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे, आप शायद जर्मनी ये में थे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या एक्सप्लेन मतलब किया, आप बोलिए, अपनी हाँ, बात ये बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गुरुदेव ने कहा कि वो चीज मिल जाएगी आपको, इच्छा उठने से पहले ही इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो मतलब आपके वाले केस में बाद में वो समझ नहीं आई, मतलब वो कैसे रिलेट हो रही है। मेरे वाले में जैसे आप कहते हैं ना, पानी पीने की इच्छा हो रही थी लेकिन पानी तो अवेलेबल था, तो वो चीज समझ नहीं आई। तो गुरुदेव के टॉक में था कि इच्छा उठने से पहले ही पूर्ण हो जाएगी आपकी इच्छा। ए भाई, एक तो ये है ना, ये समझना चाहिए ना कि अगर किसी कोई चीज चाहिए तो वो चीज पहले से मौजूद है ना भाई। हाँ तो ठीक है बात, ना अवेलेबल। ठीक बात। लेकिन मिली तो नहीं ना, होने के बावजूद भी। नहीं मिली तो तुम प्रार्थना करने से मिल ही जाएगी। यही तो बोल रहे हैं, प्रार्थना करो मिल जाएगी आपको वो चीज। करिए तो एक बात हो गई, प्रार्थना करने से मिल जाएगी। और मिल जाएगी तो फिर क्या होगा हमारे साथ? अल्टीमेटली हम जो चीज चाहते हैं जब वो हमको मिल जाती है, ये गुरुदेव ने बोला है बहुत बार, अगर अभी एक पल के लिए उसको देख सकते हैं क्या होता है हमारे साथ। हमने प्रार्थना किया ये चीज हमको मिल जाए, और मिल गई। फिर उस हाँ, समय मन की स्थिति आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। उस समय मन की स्थिति क्या होती है, कैसी होती है? सोचिए, कोई अनुभव याद करके देखना चाहिए हम लोगों को। खुश हो जाते हैं और फिर दूसरी चीज की इच्छा होने लगती है।
स्वामी जी मन भर आता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए भी गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। जो वो चीज मिल जाती है तो उस समय कैसा लगता है देख लीजिए। फिर प्रार्थना करिए, मिल जाए, भगवान करे जो आप प्रार्थना करें विश्वास के साथ करिए और आपको मिल जाए। ऐसा क्या है, गुरुदेव ने इतना तो एश्योरेंस दे ही दिया। पर बिगनिंग में आज के टॉप में उन्होंने कहा था सेल्फ इज सफिशिएंट, मतलब ये हमारी इंडिविजुअल की बात है। अपने ऊपर विश्वास, अपने प्रार्थना पर विश्वास और जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उस पर विश्वास, ये तीन तो होना चाहिए ना। मैं बहुत बेचारा हूँ, कम से कम ये तो मान के चलना चाहिए, बेचारा हूँ, मुझे ये चाहिए। मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, आप दे दीजिए, मांग लीजिए। वही सेल्फ इज सफिशिएंट, मतलब तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। दूसरे तरह से देखा जा सकता है कि तृप्ति और वो पूर्णता कहीं बाहर से नहीं मिलती। जो अभी मैंने बोला कि जब कोई चीज मिल जाती है तो कैसा लगता है, जो कुछ भी लगता है हमको ही लगता है, अंदर ही महसूस होता है। तो वो तृप्ति अंदर ही कहीं पर है। अभी ऊपर में क्या उसके परत चढ़ गया पता नहीं, बादल आ गए पता नहीं, वो कहीं बाहर से कुछ मिल नहीं रहा हमको। ये बात शायद हमने कभी पकड़ी है, नहीं पकड़ी है मुझे नहीं पता। मान लीजिए कि आप, कोई भी एक व्यक्ति है, उसको कुछ वस्तु ही चाहिए, मिल गया, उसको कैसा लग रहा है, जो भी लग रहा है अंदर ही लग रहा है, अंदर ही महसूस हो रहा है, उसको स्वयं को महसूस हो रहा है। तो वो वस्तु उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसका अंदर, उसकी अपनी भावना का बहुत महत्व है। तो सेल्फ सफिशिएंट तो है ही। तो जब हम सेल्फ से सफिशिएंट हो जाते हैं, सेल्फ में सफिशिएंट हो जाते हैं, तो सब मिल ही जाता है। फिर मिले न मिले वैसे भी कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर इच्छा भी नहीं होती। खैर वो तो बात ही बात है, इच्छा होने में कोई गड़बड़ नहीं है भाई। जीवन है तो है, इच्छा उठती है तो उठती है। ये वाला पॉइंट पकड़ में आया ना कि कोई चीज मिल भी जाए तो जो फील होता है वो हमको फील होता है। क्या? हाँ ना, यस स्वामी। हम ही को फील होता है जो होता है, संतुष्टि असंतुष्टि, तो वो सब हमारे अंदर ही है। स्वामी एक जी एक। वो हाँ, हैप्पीनेस प्रोग्राम में व्हेन आई विल गेट दिस देन आई विल बी हैप्पी, व्हेन एंड देन निकाल देंगे कैन यू बी हैप्पी नाउ, नहीं नहीं, वो ऐसे गाना वो था। अलग बात है, वो तो जस्ट अवेयरनेस के लिए है कि अभी तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। मुख्य बात क्या है कि जो भी हमको महसूस होता है वो हमको महसूस होता है, बाहर से नहीं आता। ये चीज के प्रति हमको सजगता हमेशा रखनी चाहिए। मांग ले जो भी मांग ले, और तब जो मिलने पे या नहीं मिलने पे तड़प है, मिलने पे जो भी है संतुष्टि है या जो भी है, उसको देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे अंदर कुछ हो रहा है, उसको देखें। हमारे एक स्वामी जी बोलते हैं ना कि पहले के जमाने वो
चापाकल बोलते थे, हैंड पंप, पता नहीं क्या बोलते हैं बाकी जगह। बहुत बार उसको ऐसा लगता था सूख गया, पर उसमें पानी डालो थोड़ा सा, पंप करो 3-4 बार तो पानी अंदर ऊ- ऊपर आने, बस वही चीज है। वो अंदर में कहीं पानी अभी निकल नहीं रहा, वो चीज देखने से, पाने से, ऐसे करने से फिर वो पानी बाहर आ जाता है, इतना ही। तो मांगने में कोई बुराई नहीं है, गुरुदेव ने कह दिया है मांग लो और मांगो, विश्वास के साथ मांग लो, निश्चिंत हो जाओ। और मिले तो एक बार ना बैठ के देख लेना चाहिए कि हमको जो महसूस हो रहा है कहाँ पर कुछ हो रहा है, तब वो चक्रों वाला खेल भी ना धीरे धीरे पकड़ में आएगा हमको। आ जाएगा धीरे धीरे पकड़ में। और एक लिंक मैं शेयर करूंगा, वो इंग्लिश में छोटा सा है, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया है, 6-7 मिनट का है, बाद में फिर थोड़ा वो आपको अटेंशन के साथ सुनना पड़ेगा कि प्रार्थना से संबंधित है, क्यों हम, हमारे अंदर जो चलता है ना वही चीज होती हुई दिखती है। तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। कब शेयर करूं, कल तो हम और कुछ सुनने वाले हैं। अच्छा, देख लूंगा। ठीक, और क्या? किस चीज का लिंक स्वामी जी, ये जो ऑडियो है इसका लिंक? नहीं, ऑडियो तो हम लोग यहाँ सुनेंगे। एक और है क्वांटम फिजिक्स, क्या बता रहा है, वो लिंक। तो जो मांगना हो आज मांग लीजिएगा सोने के पहले। बहुत लोगों का तो सोने का टाइम हो ही गया, थोड़ी देर में हो ही जाएगा, हो ही गया, 10 तो बज गया। तो जो मांगना हो मांग लीजिए, और एकदम खुल के मांग लीजिए, बिना कोई हिचक के मांग लीजिए। आज मन प्रसन्न है, प्रसन्न मन से मांग लीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है तो बोल दीजिए, ये चक्रों वाला खेल और ये सब नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये मांगना है, मैंने मांग लिया, आगे आप देख लीजिए। इतना टेक्निकली मैं नहीं, मुझे नहीं पकड़ में आता। ठीक, कल मिलते हैं, कल गुरुवार, हाँ।